آپ کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے مسترد کیا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ اور یہ صرف کل مسترد نہیں کیا، اس سے پہلے آپ نے وفاقی کابینہ کے چند وزراء کے ساتھ مل کر جو گھناؤنا کھیل کھیلا اور جیری منڈرنگ کی، جس طریقے سے آپ نے کانسٹیچوئنسیز سلیکٹ کی، حلقے سلیکٹ کیے اور وہاں پہ انتخابات کرائے، وہاں پر آپ کے منہ کے اوپر پاکستان کے عوام نے ایک زوردار تمانچہ مارا اور تمام نشستوں کے اوپر عمران خان کامیاب ہوئے۔ اس سے پہلے پنجاب کے انتخابات میں پنجاب کی عوام نے فیصلہ عمران خان کے حق میں دیا۔ اگر پاکستان میں ذرا سی بھی جمہوریت ہوتی تو عوام کے ان دو بڑے فیصلوں کے بعد سر تسلیم خم کیا جاتا عوام کے سامنے اور ملک کو نئے انتخابات کی طرف لے کے جایا جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے سازشیں ہیں کہ تھمنے میں نہیں آ رہی، سازشیں ہیں کہ بند کمروں سے باہر نہیں آ پا رہی، اور جب بھی یہ باہر آئیں گی پاکستان کے عوام ان سازشیوں کا اور ان سازشوں کا گلا پکڑیں گے۔ اور آج دیکھیے، فیصلے کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، ابھی تک فیصلہ ریلیز نہیں کیا گیا۔ علی بخاری صاحب ہمارے سینئر ایڈوکیٹ، کل سے انہوں نے اور فیصل صاحب نے یہ اپلائی کیا ہوا ہے فیصلہ، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 1918/21/10/2022 کل 6 بجے کا یہ انہوں نے فیصلے کی کاپی اپلائی کی ہوئی ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا۔ اگر آپ کے پاس فیصلہ موجود ہی نہیں تو کل آپ نے سنایا کیا ہے؟ اگر آپ کے ممبران کے دستخط ہی نہیں تو جو ججمنٹ کا قانون ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ کے ممبران کے دستخط نہیں ہیں تو ججمنٹ نہیں ہے۔ اور پچھلی دفعہ بھی فارن فنڈنگ کیس میں بھی الیکشن کمشنر نے یہی کیا، فیصلہ جاری کیا گیا، ویب سائٹ کے اوپر فیصلہ اور تھا اور بعد میں اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس فیصلے میں بھی اب رد و بدل اور تحریف کی جا رہی ہے، اس فیصلے میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور حکومت کی جو کل مرضی کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہوئی ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ بددیانتی کسی ادارے کی جس کے پاس انٹرسٹمنٹ ہو ججمنٹ کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن کی توہین نہ ہو، ہم الیکشن کمیشن کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک ایسے الیکشن کمیشن کا کیا کیا جائے کہ جس کے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران یعنی 5 میں سے 3 ممبران کے خلاف ریفرنس پینڈنگ ہو، اعلیٰ عدالتیں اس ریفرنس کو سنیں نہ، اور ہمیں روز اسی الیکشن کمیشن کے سامنے بھیج دیا جائے کہ اسی سے ہی آپ اپنے فیصلے کروائیں، تو اب اس کو ہم پھولوں کے ہار پہنانے سے تو رہے۔ یا تو عدالتیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں کہوں گا، یا تو آپ ہمارے ریفرنس کا فیصلہ کریں اور آپ ہمیں کہیں کہ یہ ریفرنسز نہیں بنتے، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں اور الیکشن کمیشن کے اوپر آپ ریفرنسز کا فیصلہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو ریفرنس پینڈنگ ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ بددیانتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ون سائیڈڈ ایک کمیشن ہے، اور پھر روزانہ ہمیں انہی کے سامنے بھیج دیا جائے کہ نہیں آپ فیصلے بھی آپ کریں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی فنڈنگ کیس کا فیصلہ اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ لوگ گواہ ہیں، آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے فنڈنگ کیسز کدھر گئے۔ توشہ خانہ کیس جو زرداری کا اور اس کا ہے نواز شریف کا، 10 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ان کا کیسز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہے۔ 1100 ارب روپے کے مقدمے ان کے نیب کورٹ میں ترمیم کر کے واپس ہو گئے ہیں۔ 16 ارب روپے کا کیس شہباز شریف کا، بالکل جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ایک واضح مقدمہ تھا، اس کو جو ہے وہ یہاں سے نیب کورٹ میں سے جو ہے ایف آئی اے کی کورٹ سے جو ہے اس کو ختم کروا لیا گیا ہے۔ یہ تمام زیادتیاں پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، اور ان زیادتیوں کا بدلہ جب بھی الیکشن ہوا ہے پاکستان کے لوگوں نے لیا ہے۔
लेकिन यूँ लग रहा है कि हमें एक जो वाज़े तौर के ऊपर इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी पड़ेगी। और हमने जो मौका दिया इस हकूमत ने और हकूमत से मुंसलिका जो लोग हैं उन्होंने वो ज़ाया कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम के पास कोई और चारा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए बाहर निकलें और इन ऐवानों को इन शैतानों से खाली करवाएं। ये बताएं कि आपको ये तमाम माहौल एक तरफ जा रहा है, वाज़ेह तौर पर टकराव की सियासत आ रही है, ब्लड शेड आपको नजर आ रहा है। दूसरा ये कि क्या इमरान खान के खिलाफ ये तमाम जो एक मूवमेंट चल रही है, क्या आप समझते हैं कि उनको पूरी तौर पर आम इंतखाबात आने वाले जितने भी उससे आउट किया जाना चाहते हैं? सबसे पहला वो होगा। मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो यकजहती को आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, कि वो लीडर जिसकी आवाज़ के ऊपर कोयटा से लेके काशगर तक और जिसकी आवाज़ के ऊपर कराची से लेके लाहौर तक लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ उसके साथ मिलाते हैं, आप अगर उसको सियासत से बाहर करते हैं तो आप किसको कमज़ोर कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। तो माइनस इमरान खान का जो एक ड्रीम है, जो एक ख्वाब है, जो बहुत छोटे लोग ये ख्वाब देख रहे हैं, उनका ये ख्वाब बहुत बड़ा है, ये पूरा नहीं होगा। अच्छा, आप बात बताइएगा कि कल सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि खान साहब से मुलाकात हुई है, उसके बाद जो है उन्होंने अपना इंतजाम की रिकॉर्ड करवाया और जांच। इमरान खान सुबह 2 बजे से लेके तो रात तकरीबन 9 बजे तक पूरी पार्टी वहाँ पे थी। 1-on-1 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सारी पार्टी वहाँ पर थी और ये पार्टी का फैसला था। कल हमारे पास 2 आरा थी। एक राय ये थी कि इसी को, कल का जो एहतजाज है, इसी को लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट कर दिया जाए, और दूसरी ओपिनियन ये थी कि नहीं, लॉन्ग मार्च एक बड़ा प्लान, ऑलरेडी हम उसका प्लान कर चुके हैं, ऑलरेडी हम उसकी तमाम जो जुज़ियात हैं वो देख चुके हैं, तो जो हमारा मंसूबा है हमें उसके मुताबिक जाना चाहिए। तो जो कोर ग्रुप था पार्टी का, उसने इस पर इतफाक़ किया कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ जो हमारा पहले से मंसूबा तय है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। फवाद साहब बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से आपने कहा कि इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो फैसला है ये भी तो मौजूदा टर्म के अंदर है, आने वाली इलेक्शन में तो हिस्सा ले सकते हैं। एक तो इस पर अपने कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जा सकता, तो एक हफ्ता बाकी बचा है, तो अब इसी हफ्ते के अंदर ही लॉन्ग मार्च स्टार्ट करने का है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च जो है वो किसी वक्त भी उसकी कॉल जो है वो आ जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको कहा, लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ी तहरीक का एक जुज़ है, और इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये तवील होगी। ये तहरीक एक लॉन्ग मार्च के साथ इन लोगों ने नहीं जाना। हमने एक पूरी तहरीक जो है वो प्लान की है, और इंशाअल्लाह उसकी जुज़ियात अगले 3-4 दिन में आपके सामने रख देंगे। जोशी साहब, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है वो कोर्ट रूम में सुनाया और उसके बाद तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। 2 सफ़ात सोशल मीडिया और हर तरफ सर्कुलेट हुए, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं थे हुए। वो जब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुए तो उसके बाद वही 2 सफ़ात अफगान इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली भी जारी की। ये कौन था इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले जो सफ़ात जारी की? ये तो देखिए, ये सवाल तो आपको ये जो बंद कमरों में और पुलिस के पहरे में बैठे हुए लोग हैं इनके सामने रखना चाहिए कि जनाब आप ये बताइए कि जब आपने फ़ैसला जारी नहीं किया तो आखिरी 2 सफ़ात किसने जारी किया? और अगर आखिरी 2 सफ़ात आपके दस्तखतशुदा नहीं हैं और अगर एक मेंबर ने साइन ही नहीं किए हैं तो आपके कल के फ़ैसले की हैसियत क्या है? एक तो मैं पाकिस्तान की आला अदालतों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस कंडक्ट को आप सामने रखें। ये दूसरी बार हो रहा है। पहले बार इन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील किया फंडिंग केस में, और अब ये दूसरी बार इन्होंने एक मज़ाक़ा खेज़ काम ये किया है कि जजमेंट अनाउंस की है और कह रहे हैं कि अभी उसके ऊपर मेंबर के साइन नहीं हुए। मेंबर के साइन नहीं हुए तो 2 कागज़ जो हैं वो कैसे जारी हो गए? और अगर वो मेंबर के साइन के बग़ैर जारी हुए हैं तो उनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन के सवालात हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन को हम तो कल से कोशिश कर रहे हैं कि हमें इन सवालात का जवाब मिले, लेकिन वो सारे तो अपने बिलों में घुसे हुए हैं। और आगे इतनी ज़्यादा पुलिस जाके इस्लामाबाद में, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, अमन व अमान की सिचुएशन से कहीं ज़्यादा क्राइम की सिचुएशन का प्रॉब्लम है। और ये सारे जो हमारे दोस्त हैं पुलिस वाले, इन बेचारों को यहाँ पे कल से खड़ा किया हुआ है, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। इनको हटाएं और मीडिया का, आवाम का सामना करें। फवाद साहब ये बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह आप तनकीद करते हैं, क्या बाकी इलेक्शन कमीशन जो है
मौजूदा हुकूमत के दबाव में है या उनके दबाव में है जिनको आप कहा करते थे कि उनके मुंह पे खून लगा हुआ है? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली इस हुकूमत की तो कोई हैसियत नहीं है बेचारों की। ये तो खुद जो है सिवाय डंडे की और तो किसी जोर के ऊपर नहीं खड़े हुए। तो हम समझते ये हैं कि यहाँ तक जो सूरत हाल पहुँची है वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बेएहतियाती की वजह से पहुँची। ये पाकिस्तान की जो अब की सूरत हाल जो ख़राब हुई है, जहाँ पे एक सियासी बहरान पैदा हुआ है, ये बहरान पैदा ही ना होता अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह अब आके ये कहा जा रहा है कि उनका रोल अपॉलिटिकल होगा, वो इजाज़त नहीं करेंगे। ये रोल अपॉलिटिकल रहता पहले तो ये सूरत हाल पैदा ही ना होती। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल है इसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी जो है वो सियासतदानों की भी है और हमारे इदारों की भी। साहब ये फैसला जारी नहीं हुआ, दस्तखत भी नहीं हुए एक मेंबर के, लेकिन मुकदमा दर्ज करने की खबर आ गई है कि वो पाकिस्तान मुकदमा कर रही है, तो आप इसको कैसे कंटेस्ट करें? चले 29वां मुकदमा हो जाएगा, कौन से पहले नहीं किए हुए। एंटी टेररिज्म लॉ से लेके कौन सा ऐसा मुकदमा है जो इमरान खान पे नहीं किया गया, एक मुकदमा और सही। थैंक यू। आसम भाई आओ सर।